اسلام لڑائی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدلے کا مذہب نہیں ہے، اسلام دل جیتنے کا مذہب ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ستیہ، یونیورسل ٹروتھ، لا الہ الا اللہ، پرمیشور کے سوا کوئی پوجا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے سورہ 41 آیت نمبر 34 میں ہے، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ کتنی اچھی بات۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اگر مسلمان سے کوئی بھی غیر مسلمان یا کوئی مسلمان یعنی کوئی انسان اگر اس سے بدتمیزی سے بات کرے، گالی دے، تو اس کو گالی نہیں دینا، بدتمیزی نہیں کرنی، اس کو اتنے اچھے طریقے سے اس جواب دینا ہے کہ وہ دوست بن جائے۔ باباؤں اور قبروں سے مانگنے والے شاید قرآن کی آیات سننے کے بعد اب وہ اللہ سے مانگنے لگے۔ قرآن کی یہ آیات سنیں اور اپنے اسٹوری پہ بھی لگائیں اور ان لوگوں کو ٹیگ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ۔ سنیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 73، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھا ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بے بس اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس دنیا میں کیسے بشر کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف یا اللہ کے۔ تبلیغی جماعت والوں سے نفرت کبھی مت کرنا، اگر کرتے ہو تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کر دینا۔ پہلے میں یہ تبلیغی جماعت وغیرہ سے بڑا سائڈ پہ رہتا تھا، میں ان سے نہیں ملا کرتا تھا، لیکن ان کے ساتھ جب میرا وقت لگنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو شاہد افریدی کی موت کی فکر کرتے ہیں۔ شاہد افریدی اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے، شاہد افریدی یہ سمجھ رہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ لوگ ہیں جو شاہد افریدی کو یاد دلاتے ہیں کہ یار شاہد افریدی صاحب آپ نے کل مرنا بھی ہے، کرکٹ کے چھکے چوکے لے کے نہیں جانا ہے، فرشتوں نے کرکٹ کے حوالے سے آپ سے سوالات نہیں کرنے ہیں۔ تو ماحول بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمیں ماحول سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ رسول کو اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کمزور آدمی ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، فرشتوں کو ہی اللہ نے بغیر گناہ اور غلطیوں کے بنایا، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کا جو یقین ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نمازیں وغیرہ یہ بعد میں آئی تھی، سب سے پہلے یقین پہ محنت کی گئی تھی، جتنے بھی پیغمبر تھے، صحابہ کرام وغیرہ، انہوں نے ایمان کے اوپر، یقین کے اوپر محنت کی تھی۔ تو وہ یقین اگر ہمارا ایک مضبوط ہو جائے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس چیز پہ یقین اور محمد الرسول اللہ کے طور طریقے اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آ جائیں گے، یہ عشق ہے، یہی محبت ہے، تو میرے خیال میں ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور بات کیجیے۔ جی مولانا صاحب، ایک عجیب سی میری طبیعت ہو گئی ہے، بہت بے چینی سی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہیلو، آپ بتائیں گے بھائی تو انشاءاللہ مولانا صاحب کو وظیفہ بتائیں۔ میں آپ کو اصل وہ میری جو بیوی ہے، میری بیوی اور ماں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی ہمیشہ، تو میں نے اس کے کہنے پہ نا اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے معافی مانگوں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ آپ نے اپنی والدہ کو اولڈ ہوم بھیج دیا ہے؟ تو میں اس سے معافی مانگوں لیکن اب ہو نہیں رہا۔ مطلب وہ والدہ معافی نہیں دے رہی یا کیا؟ والدہ کر گئی ہے میری۔ اللہ، آپ کی گفتگو سن کے نا میرا جگر منہ کو آنے کے قریب ہے۔ وہ ایک عاشق نے نا اس کو معشوق نے کہا تھا کہ ماں کا جگر لاؤ گے تو تم سے شادی کروں گی، اس بدبخت نے جا کے ماں کو چھیرا، ماں کا جگر نکالا اور چلتا ہوا دوڑا کہ میں اپنے معشوق سے کہوں کہ لے، میں نے اپنی ماں کا جگر کاٹ کے تیرے سامنے پیش کر دیا۔ تو وہ بھاگنے لگا، جب وہ بھاگنے لگا تو وہ کہیں ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا، جیسے ہی گرا تو کلیجے سے آواز آئی، شالا خیر ہوئے میرا بچہ۔ اللہ اکبر، اللہ شالا خیر ہوئے میرا، جو 9 ماہ پیٹ میں رکھ، خود نہ کھائے تمہیں کھلائے، خود نہ پیے تمہیں پلائے، خود سردیوں کی راتوں میں کھڑکی دروازوں کے قریب سوئے، تمہیں نے ہاتھ پھیلائے، لوگوں کے گھروں میں برتن بھاجے اور تمہارا پیٹ پالا، اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا،
उसकी कान की समाधि चली गई, उसको शुगर लगा तेरी वजह से, उसको ब्लड प्रेशर हुआ तेरी वजह से, उसको कैंसर लगा तेरी वजह से, उसका जीना हराम हो गया। आज एक माँ ओल्ड होम में मर गई है एक बेटे के हाथों, जिसके पैरों तले जन्नत थी, तुमने उसे माँ का जनाजा निकाल दिया। इस माशरे पे कयामत क्यों नहीं आएगी जहाँ माँ जैसी बंदा को लोगों ने ओल्ड होम में बिठाया हुआ है। अरे बीवी अपनी जगह पर मुकद्दम है, माँ मुकद्दस है। यदि आवाज जहाँ तक भी जाए अपनी माँ की कदर कर ले। उंगली पकड़ के चलाया सीने इस वीडियो में आपको दो चीजों के बारे में बताया जा रहा है। एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताया जा रहा है, दूसरा हदीस के बारे में बताया जा रहा है। ये वीडियो देख के अगर आपका ईमान ताजा ना हुआ तो कहना। इंसान के जिस्म में सबसे मजबूत हिस्सा इंसान की हड्डियां होती हैं, लेकिन जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो हड्डियां भी गल जाती हैं। मगर साइंस कहती है कि इंसान की रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी हड्डी है, इंसान चाहे सड़ जाए, गल जाए या जल जाए मगर वो हड्डी बाकी रहती है, और उस हड्डी के अंदर एक डीएनए कोड भी होता है जिसके जरिए उसको पहचाना जा सकता है। अब हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4935, लैसा मिनल इंसानी शैउन इल्ला यबला इल्ला उज़्मन वाहिदन व हुवा अजबुज़ ज़नब व मिन्हु युरक्कबुल खल्क़ु यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान का जिस्म बोसीदा हो जाता है मगर एक हड्डी कि वो हमेशा बाकी रहती है। फरमाते हैं वह हुवा अजबुज़ ज़नब, और उसको अजबुज़ ज़नब कहते हैं, और इसी से क़ियामत के दिन इंसान की दोबारा से तख्लीक होगी। क्या अब भी नहीं मानोगे कि इस्लाम ही एक सच्चा दीन है? कहा था ना कि ईमान ताज़ा हो जाएगा। यार कितनी गहराई है इस हदीस पाक। अगर कोई काफिर इस पर गौर कर ले यार मुसलमान हो जाए। 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बता दिया कि ये हकीकत है? रिसर्च तो आज हो रही है, लेकिन वो पहले कैसे पता चला? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह के नबी हैं, उनके पास डिवाइन गाइडेंस है, क्योंकि उन पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसका चेहरा तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस दूसरों तक पहुंचाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उनका भी ईमान ताज़ा कर दीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने फर्ज होते हैं? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। पहले तो आप पढ़ते हैं। हाँ जी, बाबू बता रहे हैं। मैं बताऊँ? आप बताएं। हाँ बता दिया तो क्या इनाम दोगे? सलाम बाबू जी, सलाम। सलाम तो मैं दो हाथ से करता आपकी अजमत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम। दो सुन्नत दो नफल। तुमने हमारे से बाबा इंटरव्यू लेना है। लो जी, बाबा जी ने बताया जी सुबह की नमाज में 2 सुनते और 2 नफल होते हैं। बाबू जी के लिए तालियां यार, तालियां होनी चाहिए यार, बाबू जी के लिए तालियां होनी चाहिए।
अब इन्होंने ठीक बताया ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, आपका छोटा भाई है, बुजुर्ग हैं मेरे। बाबू दोबारा बता दें। 2 सुन्नत और 2 नफल। वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखावे शरीफ, अल्लाह अकबर। अच्छा, आप 2 सुनते हैं 2 नफल, ठीक बता अच्छा, दिया बुजुर्गा ने बता दिया तो ठीक है। बाबा जी ने जो बता दे ठीक बता दे। जो बुजुर्गा ने बता दिया तो ठीक हो गया बाबा जी, तो बुजुर्ग जो हैं। जनाजा रखा हुआ है और ये हजरत क्या नसीहत कर रहे हैं, आप लोग जरा सुने। इसलिए आप अपने बच्चे को हाथ जोड़ करके मैं तमाम लक्ष्मीपुर के लोगों से और जितना भी जनाजे की नमाज में शिरकत किए हुए, मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम सबसे पहले अपने बेटी और बेटे को दीन की तालीम दे। कुरान जब पढ़ने आ जाए, उनको जनाजा का तरीका मालूम हो जाए, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए, फिर उसके बाद में आपकी हैसियत है डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, प्रोफेसर बना दीजिए, जो बनाना है बना दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को इंसान बनाइए। क्या इंसान? वो इंसान जो अल्लाह। चलो मैं पानी पूरी नहीं है, कुछ भी नहीं, अंदर जाओ। कहीं को भैया? बुर्का कहाँ है तुम्हारा? एक गली के कॉर्नर तक स्नान जाने का। बुर्का पहने तो लेके जाता हूँ, नहीं तो नहीं। अरे कहीं को ऐसे छोटे छोटे बातों को गुस्सा करते रहते तुम। अगर पर्दा छोटी बात होती तो खुदा उतनी बड़ी किताब में जिक्र नहीं करता। आपने बहुत अच्छा डीजे बजाया है, ये लीजिए। अरे भाईजान, ये शादी का जोड़ा आपने कितने का लिया? अरे भाई पूरा 8000 रुपए का है। इमाम साहब, मेरी बेटी की शादी है, आप ही को निकाह पढ़ाने आना है। इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। अच्छा भाई, चलो बारात जाने का वक्त हो गया है। आपने बहुत अच्छा डीजे बजाया है, ये लीजिए पूरे 10,000 रुपए। ये लो, तुम्हारे भाई के शादी की खुशी है, सब गाड़ी वालों को दे दो, पूरे 30,000 रुपए। जूता चोरी के 5,000 रुपए मांग रहे, दे दूं? अरे दे दो, बेटे की शादी की खुशी है। जनाब लाइए, कुछ नजराना दीजिए बेटे की शादी की खुशी में। अरे इमाम साहब को कितना दे देने? अरे 1000 रुपए दे दो, बहुत है। जूता चोरी के 5,000 रुपए मांग रहे, दे दूं? अरे दे दो, आपने बहुत अच्छा डीजे बजाया है, ये लीजिए पूरे 10,000 रुपए। शादी में डीजे वाले को 10,000 और निकाह पढ़ाने वाले को 1,000। अब आप बताएं, आने वाली नस्लें आलिम पैदा होगी या जाहिल? नजारा इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। अस्सलाम वालेकुम भाई, चलो नमाज का वक्त तो नमाज पढ़ने। ए जा, हम लोग अपनी नमाज बाद में देख लेंगे, बड़ा आया हमें नमाज की दावत देने। भाई सुन। अरे अरबाज, अच्छा हो तू मिल गया, मैं तेरे पास ही आ रहा था। मेरे दोस्त, मैंने तुझे बहुत बार नोटिस किया है कि तू इन्हें सलाम करता और ये लोग तेरे सलाम का जवाब नहीं देते, और तू इन्हें नमाज की दावत देता है, ये तुझे धुतकार देते, तो तू क्यों करता है ऐसा? अरे भाई, जब वो लोग अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहे तो अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? चल मेरे दोस्त, नमाज का वक्त हो गया, चल मेरे साथ नमाज पढ़ने। अरे भाई, मुझे काम के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं कभी और चलूंगा। तू हमेशा इसे नाटक करता है, काम तो हर किसी को होता है, मगर नमाज से बढ़कर कुछ नहीं मेरे भाई। तू नमाज पढ़ लिया कर मेरे भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ जन्नत में हम दोनों भाई साथ में जाए। हाँ यार भाई, सही बोल रहे तू, पर तू मुझे एक बात बता, एक वक्त था तू भी काम करता था लेकिन नमाज नहीं पढ़ पाता था, अब तू काम भी कर रहा है, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ रहा है। मैं तो बहुत आसानी से नमाजी बन गया और मेरा बहुत मन भी लगता नमाज में। वो कैसे? अच्छा एक बार बता, तेरी नजर में ऐसे कौन से लोग हैं इस दुनिया में जो नमाज नहीं पढ़ते? जो मर गए वो नमाज नहीं पढ़ते, जो अल्लाह से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते, और जिन्हें नमाज नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते, और हाँ, जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाई, तू भी नमाज नहीं पढ़ता, अब तू खुद ही सोच ले इनमें से कौन है तू। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है। बहुत अफसोस की बात है। हाँ यार, अच्छा आदमी था बेचारा। यकीन ही नहीं हो रहा। जुम्मा मुबारक भाइयों। जुम्मा मुबारक। कहाँ जा रहे हो? यार वो मुस्तफा को हार्ट अटैक हो गया, उसके जनाजे पे जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। कुछ भी हो जाए भाइयों, उसके कफन दफन का बंदोबस्त मैं करूँगा, सुना है बहुत सवाब का काम। जनाजे को कंधा देने में बहुत बड़ा सवाब है, आप भी चलो हमारे साथ। यार कुछ मदद हो सकती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है।
यार मेरे भी बच्चे पूरे बीमार हैं, मेरे पास खुद कुछ नहीं है। यार मैं इस टाइम कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी यार, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था, जिस तरह लोग जनाजे को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसके कफन दफन का बंदोबस्त करना सवाब समझते हैं, काश इसी तरह लोग जिंदा इंसान को सहारा देना भी सवाब समझते, तो पूरी दुनिया की जिंदगी आसान हो जाती। सिर्फ सजदे में झुकना ही इबादत नहीं, किसी की मदद करना भी इबादत है। उस्ताद मैं फिर आ गया। तेरे को सवाल भी लाया हूँ। हाँ चल पूछ। बेवफा कौन होता है? सवाल तो अच्छा है यार। बेवफा वो होता है बेटा जो नमाज नहीं पढ़ता है, क्योंकि जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा। पड़ा रह गया सब। भाई साहब, ये जो कांधा दे रहे हैं ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं और ये हकीम, इनके पास हर चीज का इलाज है। ये जो जनाजा जारिया है, इस बंदे का इलाज इन्हीं डॉक्टर ने और इन्हीं हकीम ने करा, जिनके पास हर चीज का इलाज है, ताकि लोगों को इस बात का एहसास होए ये डॉक्टर और हकीम जिसका इलाज कर रहे थे उसकी मौत को नहीं टाल पाए। और ये जो इनके जनाजे में पैसे लुटा रहे हैं, ये मामला क्या है? ताकि लोगों को इस बात का एहसास होए जो इसने पैसा कमाया वो भी इसके काम ना आया। और ये जो इनके हाथ कफन के बाहर निकले हुए, ये माजरा ये है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, बस अच्छे अमाल अपने साथ ले जाएंगे। जिनका ये जनाजा है, ये शख्स है कौन? ये शख्स मैं हूँ। जगह लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत। मुसलमानों का ईमान कैसे खराब करें जबकि उन्होंने कुरान को पकड़ रखा है। तुम परेशान ना हो, हम मुसलमानों की सिर्फ दुनिया ही नहीं आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। अपने लोगों को आलिम बनाकर इनके बीच फैला दो और ऐसे शैतानी ताबीज को इस्लामी ताबीज बताकर लोगों में बांट दो। जब ऐसे ताबीज मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चों के गले में जाएंगे तो शैतानी काम और भी आसान हो जाएंगे। ऐसे नंबर तो कुरान या हदीस में नहीं लिखे, मुसलमान इस ताबीज पर कैसे भरोसा करेंगे? मुसलमान अक्सर अनपढ़ और जाहिल होते हैं। ताबीज के आसपास अल्लाह मोहम्मद का नाम या कोई आयात लिख देना, वो पूरे ताबीज को इस्लामी मान लेंगे। इसी तरह नजर लगने पर मुसलमानों के पास कुरान की सूरह फलक और सूरह नास मौजूद थी, लेकिन हमने इन जाहिलों के बिच लाल मिर्च और भिलावे का तोटक्का फैला दिया। अब इन्हीं शैतानी चीजों से नजर उतारकर ये लोग खुश हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारा डायरेक्ट नहीं सुन सकता, उसके लिए वलियों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अल्लाह की नेक बंदों की जरूरत पड़ती है, तब जाके अल्लाह उनके जरिए से हमारी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन आज मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। मेरा बात मत मानिए, लेकिन इस कुरान की बात को आपको माननी ही पड़ेगी। और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। बेशक जो लोग तकब्बुर के बिना पर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे ये कहाँ से किताब लेके आ गए तुम, किसका राइटर है, कौन ट्रांसलेट किया है? तो देखिए भाई, आपके घर में ये किताब होगी तो आप ये देखिए सूरह नंबर और आयत नंबर, ठीक है, निकालिए और यहाँ पे अरबी में पढ़िए, वकाल रब्बुकुम अदूनी। तो इसका मतलब जाके अरबी में पढ़िए, सीखिए, ढूंढिए लोगों को। और कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ने ही कुरान में कहा है कि जरिया लगाओ, यानी कि वसीला लगाओ, वसीले के जरिए से मांगो। तो वो भी मैं सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो। उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें फलाह हासिल होगा। अब लोग कहेंगे कि आ गया ना वसीला वसीला वसीला, लेकिन तुमने ये नहीं दिखा कि अल्लाह ने कहा है कि और उस तक के रास्ते में जिहाद करो, यानी कि जद्दोजहद करो, अपने नफ्स से लड़ो, अपने माल को खर्च करो, अपनी सांसों को खर्च करो, अपनी जानों को खर्च करो अल्लाह तक पहुंचने के लिए। और वसीला का यहाँ पे ये नहीं है कि तुम वली से मांगो, ठीक है। ये वसीला क्या मतलब है कि कुरान से मदद लो, नमाज से मदद लो, अल्लाह तक पहुंचने के लिए। अल्लाह सबसे ज्यादा करीब जब तुम सजदे में होते हैं तब सबसे ज्यादा करीब होता है, तो ज्यादा से ज्यादा सजदा करो। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वो भी मैं कुरान में दिखाऊंगा कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है और अल्लाह बेनियाज है और तुम हो जो मोहताज हो, समझे? तुम मोहताज हो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है तुम्हारी बात को सुनने के लिए, ठीक है। किसी के जरिए की जरूरत नहीं है अल्लाह को। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे हम तो बहुत गुनहगार हैं, वो तो अल्लाह के वली है, अल्लाह उनके ज्यादा सुनेंगे, हमारी कम सुनेंगे। तो ये बात को भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा है, देखिए, कह दो कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीन जानो अल्लाह
सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। तो ये शैतान है जो आपको बार बार वसवसे पैदा करता है कि तुम गुनहगार हो, तुम अल्लाह से मत मांगो, तुम्हारी अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं सारे गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। अब बात ये आती है कि अगर हम गुनहगार हैं और वो अल्लाह के वली हैं, तो वो अल्लाह के वली अल्लाह के ज्यादा करीब हैं। हम अल्लाह के करीब नहीं है, हम गुनहगार हैं, तो अल्लाह मेरे कम सुनेगा। तो ये भी मैं कुरान में ये दिखाने जा रहा हूँ। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूँ कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वालों की पुकार सुनता हूँ, लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्ते पर आ जाएं। ठीक है, आप लोग राह रास्ते पर आ जाएं। और राह रास्ता क्या है? अल्लाह का रास्ता है। और बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। और बेशक अल्लाह तुमसे बहुत ही ज्यादा करीब है। तुम खुद अपने आप से इतना करीब नहीं हो जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आज भी तलाक तलाक ये रही महर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक बिदअत कहते हैं इसे, जो इंसान ने बनाया कुरान से अलग। मतलब शरीयत के हिसाब से ये तलाक जायज नहीं है? तलाक के तरीके और शर्तें कुरान में लिखी हैं। तलाक को 3 महीनों की मुद्दत में दिया जाए जिससे सुलह का मौका मिले। सूरत अल बकरा में लिखा है कि शौहर अपने गुस्से पर काबू पाए, वक्त ले, और अगर सुलह हो जाए तो रिश्ते को तोड़ने की जरूरत ही नहीं। सूरत अन-निसा में साफ साफ कहा गया है कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो दोनों के घर वाले मिलकर मसले को सुलझाने की कोशिश करें। अब्बास ने तो एक सांस में तलाक दे दिया। ये तरीका तो कुरान में है ही नहीं। कुरान में नहीं है लेकिन शरीयत में तो है। खलीफा उमर ने तलाक बिद्दत को सही माना। खलीफा उमर ने तो ये भी कहा है कि तलाक बिद्दत तब तक कायम रहेगा जब तक ऐसा करने वालों को सरेआम कोड़े ना मारे जाएं। बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे।